Very good evening, everyone. My name is Anshit Gupta. I'm here to take a demo session on MSP, that is Microsoft Project. I would request everyone to keep yourselves on mute for throughout the session. And at the end of the session, in the last 10-15 minutes, you can ask all the doubts that you have, whether in Hindi or English, in any language. So we'll start with this session. So actually, we are taking a 21-day course on MSP that will cover intermediate as well as advanced level of Microsoft Project. It will be a 1 hour daily session. So before beginning with the course contents, I'll just give you a 30 seconds small introduction about myself. My name is Anshit. I have worked as Deputy Manager Project Planning in charge in Shapurji Palanji and Company for 3.5 years. Currently, I'm doing my own business. My areas of expertise during my uh, project tenure were project scheduling, that is preparation of a schedule, same using Microsoft Project. Then continuously tracking those schedules, monitoring those schedules, then tracking the delays, which are day-to-day delays that happen in a project. And then after these delays, preparation of catch-up plans. All these things I used to do on Microsoft Project. Apart from this, things that I have been working on are my project material management, site logistic, costing of a project, budgeting, preparation of cost to complete for a project, form work planning, various reports that we need to prepare on day-to-day basis, daily progress report, weekly progress report, MIS, etc. Then calculating and monitoring project risk, that is complete risk management, which is itself another subject. And then these are the softwares which I have worked on: Excel, Microsoft Project, Primavera Risk Analysis, SAP, and AutoCAD. So this was just a brief introduction about myself. Now, first I'll tell you what are the things that we are going to cover in that 21-day session. So as MSP is a planning software, so first we will be covering some basics of project planning. Okay, that include what actually planning is, what is activity method statement, what is predecessor, what is successor. Okay, there are how you link different activities, what is league, lad, critical path, all these are planning terms, but we need to understand these planning terms to study MSP, because MSP is nothing but a planning software. So 1 to 2 sessions, or maybe 2.5 sessions, first we will be taking on this basics of planning, what actually planning is, what are these terminologies, these terms. Today also I will discuss, but today we will be discussing them only in brief. Then we will discuss some basics of MSP. What are the uses, types of links, what are advantages, disadvantages of MSP. That is a very small part. Then after this, we will start with various tabs. We will finally we will open the software, and we will start with different tabs. That is what are use and functionalities of different tabs in this uh, in MSP. For example, file, task, resource, report, project, view, format, all these things we will see on MSP. Then the first thing that we will start with in the software is preparation of project calendar. That is the most important thing when you uh, discuss about preparation of a schedule. The most important thing is to finalize a calendar. What will be the working time at your site? What will be the working weeks? What are the holidays? You need to enter those holidays, when the labor will not be available, किस किस दिन कौन सी लेबर साइट पर नहीं चढ़ेगी, वो सारी डिटेल आपको इसमें एंटर करनी पड़ती है. फॉर एग्जांपल, कुछ लेबर होली दिवाली पे नहीं काम करेंगे, कुछ लेबर ईद पे नहीं काम करेंगे, कुछ लेबर पारसी न्यू ईयर पे नहीं काम करेंगे. तो डिफरेंट डिफरेंट गैंग वाइज वो सारी चीजें आपको डेटा इसमें एंटर करके फाइनली एक प्रोजेक्ट का कैलेंडर तैयार करना पड़ता है. फिर उसके बाद आप शेड्यूल बनाना स्टार्ट कर सकते हैं. देन क्रिएटिंग डिफरेंट टास्क, डिफरेंट एक्टिविटीज. फिर वो सारी एक्टिविटीज में हम रिसोर्सेज लोड करेंगे. फॉर एग्जांपल, कंक्रीट में डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज, सीमेंट, सैंड, स्टील, रिइंफोर्समेंट, वो सारी चीजों का हम एक एक करके रेट्स इनपुट करेंगे. असाइनिंग कॉस्ट टू दीज रिसोर्सेज, देन असाइनिंग रिसोर्सेज टू दिस टास्क. रिसोर्स लेवलिंग एंड स्मूथनिंग, किसी दिन कम लेबर लग रही है हमें, किसी दिन ज्यादा लेबर लग रही है. अगर हमारे शेड्यूल के हिसाब से हमें आज 4 जेसीबी लग रही है, कल 2 ही जेसीबी लग रही है, तो हम वो रिसोर्स लेवलिंग करेंगे साइट की प्रैक्टिकलिटी देखते हुए कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपने आज साइट पे 4 जेसीबी मंगाई, फिर कल एक ही मंगाई, फिर कल 4 मंगाई, फिर परसों 2 ही मंगाई. ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो चीज, क्योंकि मोबिलाइजेशन डीमोबिलाइजेशन का भी
खर्चा आपको लगेगा जितनी बार आप मशीन को अपने साइड से डिमोबिलाइज करेंगे। तो वो सारी प्रैक्टिकल चीजें कंसिडर करते हुए हम रिसोर्स लेवलिंग, रिसोर्स स्मूथनिंग करके एक फाइनल शेड्यूल पे अराइव करेंगे। देन हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट माइलस्टोन सेट करेंगे, उसके बाद हमारा एक शेड्यूल फाइनल हो जाएगा। वंस अवर शेड्यूल इज फाइनल, उस शेड्यूल को हम क्लाइंट के साथ, सब लोगों के साथ, अपने अपर मैनेजमेंट के साथ एज अ प्लानर डिस्कस करते हैं। जब वो शेड्यूल फाइनल हो जाता है, वो सारी डेट्स फ्रीज हो जाती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इट इज अ प्रोजेक्ट बेसलाइन। सो हाउ टू सेट अप प्रोजेक्ट बेसलाइन इन एमएसपी, दैट वी विल सी। Then after that, WBS, that is work breakdown structure, how we can create WBS. Then after completion of this, we will enter into costing part. This costing part comes in advance MSP. We will assign cost to different resources. कौन सा material कितने cost का है, we will enter cost rate table, we will enter cost type of resources, project cost, budgeted cost. We will enter all these type of costs. So at the end, with a schedule, a budget will also be prepared, that कि आपका प्रोजेक्ट 2 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, या 100 करोड़ का है, 1000 करोड़ का है, जो भी है, आपके पास एक कॉस्ट भी रेडी होगी, प्लस आपके पास एक शेड्यूल भी रेडी हो जाएगा। देन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ दिस शेड्यूल, then we will do the project tracking. Again, I will request everyone, please keep yourself on mute. Thank you everyone. Yeah. Then project tracking, बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट ट्रैकिंग। जब एक शेड्यूल फाइनल हो जाता है, तब जब साइट स्टार्ट हो जाती है, तब हम डेली मंथली उस शेड्यूल को ट्रैक करते हैं, उसमें क्या क्या डिले हो रहा है, वो सारी चीजें हम हमारे मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते हैं, कैसे उस डिले को हमें ओवरकम करना है, मशीन बढ़ा के, मटेरियल बढ़ाकर, या दो एक्टिविटीज को पैरेलली चलाकर, जो भी हमें करना है, वो सारी चीजें प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग में आती है। ऑटोमेटिकली अपडेटिंग द प्रोजेक्ट, मैन्युअली अपडेटिंग द प्रोजेक्ट बाय यूजिंग वर्क आवर डेटा, मैन्युअली अपडेटिंग द बाय प्रोजेक्ट यूजिंग परसेंटेज वर्क कंप्लीशन डेटा, डीलिंग विथ डिलेइंग प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हम प्रोजेक्ट ट्रैकिंग में देखेंगे। देन सबसे एडवांस पार्ट एमएसपी का या किसी भी प्रोजेक्ट प्लानिंग सॉफ्टवेयर का होता है अर्नड वैल्यू एनालिसिस। तो एक्चुअली अर्नड वैल्यू एनालिसिस क्या होता है, अर्नड वैल्यू एनालिसिस कैसे करते हैं रियल लाइफ में, वो हम देखेंगे। उसके बाद अर्नड वैल्यू एनालिसिस किसी सॉफ्टवेयर में कैसे करते हैं, एमएसपी में हम कैसे करेंगे, यूजिंग परसेंटेज कंप्लीट वैल्यू। दूसरा होता है यूजिंग फिजिकल परसेंटेज कंप्लीट वैल्यू। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो ये एंड कॉस्टिंग, ये एडवांस पार्ट में आता है। देन हम छोटे छोटे वेरियस कस्टमाइजेशंस देखेंगे एमएसपी पे, जो छोटे छोटे कस्टमाइजेशंस करके एज अ प्लानर आपका टाइम कैसे सेव हो सकता है फ्यूचर में। जो शेड्यूल बनाने में आपको 40 मिनट्स लगते थे, वो शेड्यूल आप 30 मिनट्स में भी बना सकते हैं, क्योंकि जब आप जॉब कर रहे होते हैं, आपको 1000 काम और होते हैं, सिर्फ शेड्यूल बनाना ही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। एज अ प्लानर पूरी साइट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर होती है, तो आप जितने कम टाइम में जो काम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बेसिक बेसिक कस्टमाइजेशंस देखेंगे, छोटे छोटे क्या क्या ट्विक्स कर सकते हैं हम सॉफ्टवेयर में, ताकि हमारे लिए यूजर फ्रेंडली हो एंड में। देन रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होती हैं एमएसपी पे, बहुत सारी रिपोर्ट्स एमएसपी में जनरेट होती हैं, जो हमें कुछ रिपोर्ट्स हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर को सबमिट करनी पड़ेंगी, कुछ रिपोर्ट्स क्लाइंट को सबमिट करनी पड़ेंगी, कुछ डेटा हमारी एग्जीक्यूशन, साइट एग्जीक्यूशन टीम के लिए है, कुछ कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स के लिए है। तो ये सारी पार्ट देखेंगे। देन इस पूरे 21 डेज के टेन्योर में हम 2 शेड्यूल बनाएंगे पैरेलली। मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिकली बना बना के दिखाऊंगा 2 शेड्यूल एमएसपी पे। एक हमारा नॉर्मल बेसिक लेवल ऑफ शेड्यूलिंग होगा, जो 80% यूज होता है सारी कंपनीज में इंडिया में, एलएनटी, शाहपुरजी, टाटा प्रोजेक्ट्स, और जो भी आप पीएसपी प्रोजेक्ट्स, जो भी आप बड़ी कंपनी का नाम देंगे, 80% हम ये फर्स्ट टाइप ऑफ शेड्यूल ही यूज करते हैं, जो इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एमएसपी में आता है। उसमें सिर्फ हम एक्टिविटीज एंटर करते हैं, डेट्स एंटर करते हैं, कैलेंडर एंटर करते हैं, उसे उसमें हम ट्रैकिंग करते हैं, एंड कंटिन्यूस हम उस प्रोजेक्ट को मॉनिटर एंड ट्रैक करते रहते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। उसमें रिसोर्सेज एंड कॉस्टिंग नहीं एंटर करी जाती है, उसे हम दैट इज कॉल्ड अ बेसिक लेवल ऑफ शेड्यूलिंग, दैट इज शेड्यूल 1। Sir, again, I would humbly request you to please keep your mic on mute. Thank you so much. Yeah, so this will be the first kind of schedule that we will be preparing, जिसमें resources and costs नहीं होंगे. So that is known as task that honors their constrained dates, and new tasks are not effort driven. इसका मतलब अभी आपको नहीं समझ में आएगा, but during the course annual I will explain. So ये हो गया first kind of schedule जो हम prepare करेंगे. Second kind of schedule जो हम prepare करेंगे, जो उसमें resources, costing, उसमें earned value analysis, उसमें सब कुछ होगा advanced level. Last के 4-5 lectures में हम ये second type of schedule भी prepare करेंगे, because in some companies, for example, if you're associated with Turner and various other consulting firms, then you will be required to enter resources, costing, earned value analysis, everything will be required. So ये भी हम देखेंगे, ये दोनों टाइप के शेड्यूल हम completely parallelly prepare करेंगे, and ये prepare हो जाने के बाद
लास्ट में आई विल बी गिविंग यू एन असाइनमेंट फॉर अ स्मॉल प्रोजेक्ट जस्ट टू चेक वेदर जो भी हमने 21 डेज किया है उसमें से आपने कितना ग्रेस्प किया है। ये असाइनमेंट जब आप सबमिट कर देंगे, एज पर दैट यू विल रिसीव द सर्टिफिकेट फॉर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। सबसे लास्ट सेशन में, दैट इज इन द 21st सेशन, वी विल अगेन रिवाइज द कंप्लीट 20 days session in first half an hour, and then in next half an hour I will be discussing क्या डिफरेंस है एमएसपी और प्राइमावेरा में, क्यों हमने एमएसपी प्रेफर करना चाहिए, किस सिचुएशन में हमें प्राइमावेरा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक प्लानिंग सॉफ्टवेयर है। एंड देन क्योंकि अब आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है एमएसपी का, तो आप सब लोग अपने अपने रिज्यूमे में ऐड कर देंगे आई एम प्रोफिशिएंट इन इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। सो उस केस में आपको बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए एमएसपी से रिलेटेड। सो लास्ट 20-25 मिनट्स मैं आपको कुछ बेसिक 20-30 क्वेश्चंस बताऊंगा और उन विद देयर सॉल्यूशंस की क्या क्या जनरली इंटरव्यू में एमएसपी से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। ये हमारा पूरा 21 डेज का फ्लो रहेगा सेशन का। सो दिस वाज आवर कोर्स कंटेंट्स। देन now we'll begin with our demo session. So what actually MSP is? Microsoft Project is a project management software product which was developed and sold by Microsoft. नाम से ही समझ में आ रहा है हमें कि माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है। इट इज डिजाइंड टू असिस्ट अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन डेवलपिंग अ शेड्यूल, असाइनिंग रिसोर्सेज टू द टास्क, ट्रैकिंग प्रोग्रेस, मैनेजिंग द बजट एंड एनालाइजिंग द वर्कलोड। ये सिंपल एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर को, शेड्यूलर को, टू हेल्प देम इन प्रिपरेशन ऑफ अ शेड्यूल बनाया गया है। प्लस कैसे हम रिसोर्सेस असाइन करते हैं, कैसे हम प्रोजेक्ट्स को ट्रैक करते हैं, हम कैसे बजट मैनेज करें, कैसे हम प्रोजेक्ट मैनेज करें, उस सब चीजों के लिए सॉफ्टवेयर है। There is a doubt that MSP software will be provided by you. Sir, actually we will provide you the links how to download MSP software. उसमें guidelines हैं, उसमें links हैं, वो आप use करके download कर सकते हैं, depending upon that whether your computer is a 64-bit or 32-bit computer. And still after that, if there will be any issue, then the complete technical team of the pro trainee will help you out, and they will personally on call help you in installing the software. So you don't need to worry about the software. Is the software free or paid? Actually, it is that we will provide you some demo student versions. Yeah, so we'll provide a version that will be free. Yes, yes. Pro Trainee will provide you all the no. Pro Trainee will provide you links of the free version, sir. You will not be provided the links of the paid version. You don't need to pay for the software. Yes. To understand Microsoft project, it is very important to learn a few basic. ओके, सो बिफोर, ये एक स्क्रीन है जैसा हमें एक एमएसपी दिखता है। एमएसपी में हमें ये सारी एक्टिविटीज होती हैं, ड्यूरेशंस होती हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट होता है, ये बाजू में गैंट चार्ट होता है। ये जस्ट एक उसका ग्लिम्स मैंने स्क्रीनशॉट ऐड किया है एमएसपी कैसा दिखता है, फॉर दोज जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग विद माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, सम बेसिक प्लानिंग टर्म्स वी नीड टू अंडरस्टैंड, उसके बिना हमें एमएसपी नहीं समझ में आएगा। एंड सम शॉर्ट हिस्ट्री हम देखेंगे एमएसपी की। सो फर्स्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने 1984 में लॉन्च किया था बाय सम अदर कंपनी, जिसके राइट्स पूरे माइक्रोसॉफ्ट ने वो कंपनी 1985 में परचेस करके, उसके बाद से बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं एमएसपी के। द फर्स्ट विंडो वर्जन 1990 में आया था, उसके बाद से 2000, 2003, 7, 10, 13, 16 लेटेस्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट 2019 है। सो हम जो लिंक शेयर करेंगे दैट विल बी 2019 ओनली, बट कुछ पीसीज में 5 to 10% पीसीज में 2019 नहीं चल पाता है, किसी के पुराने पीसीज होते हैं, किसी की रैम कम होती है, तो उस केस में हम 2016 का भी आपको लिंक शेयर कर देंगे, क्योंकि 2016 और 2019 में कुछ भी मेजर डिफरेंस नहीं है, जस्ट 1 to 2% डिफरेंस है। सो आपको कुछ भी इशू नहीं होगा अगर आप 2016 भी डाउनलोड करते हैं तो। सो एनीवेज, दिस जी जस्ट ब्रीफ अबाउट एमएसपी। नाउ कुछ टर्मिनोलॉजी हमें समझने की बहुत जरूरत है अगर हमें कोई भी प्लानिंग सॉफ्टवेयर समझना है। तो पहला, व्हाट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग? एक्चुअली प्लानिंग क्या होता है? देन व्हाट इज एक्टिव मेथड स्टेटमेंट?
देन व्हाट इज एक्टिविटी सीक्वेंसिंग, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होता है, देन व्हाट इज प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड व्हाट इज प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग। ये सारी चीजें एमएसपी से होती है, बट ये क्या होता है हमें वो समझ में आएगा तब शायद हम एमएसपी की तरफ बढ़ पाएंगे। सो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट इज अ कंप्लीट प्रोसेस कैरिंग आउट वर्क टू अचीव अ प्री डेस्टिनेटेड रिजल्ट। ओके, देन एक प्रोजेक्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अ प्रोजेक्ट हैज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव पहले से होता है कि मैं ये 5 फ्लोर्स की 5 मल्टीज बना के सेल करूंगा तो मुझे इतना परसेंट प्रॉफिट होगा, या मैं इसे कम प्रॉफिट में सेल करूंगा तो मुझे मेरे कस्टमर्स को मेरा नाम बढ़ेगा। जो भी है, एवरी प्रोजेक्ट हैज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड अ यूनिक एफर्ट। क्यों हमें शेड्यूलिंग प्लानिंग ये सारी चीजें स्टडी करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जो लोग कंस्ट्रक्शन में काम किए हुए हैं उन्हें ये बात पता होगी कि ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, कितने सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोग उसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेबर्स होते हैं, क्लाइंट होता है, बहुत सारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। देयर इज अ मल्टी डिसिप्लिनेटरी टीम वर्किंग। बहुत सारी कॉस्ट होती है, कुछ भी एक पर्टिकुलर आइटम की अगर कॉस्ट बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल सेकंड लॉकडाउन के बाद सीमेंट के रेट्स, स्टील के रेट्स, सैंड के रेट्स आसमान छू रहे हैं, 10% 20% हर चीज के रेट्स बढ़ चुके हैं। तो जिस प्रोजेक्ट का प्रॉफिट मार्जिन ही 20% था, उसका प्रॉफिट खत्म हो चुका है। बहुत सारे लोग लॉस में प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके निकलने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, या फिर कुछ छोटी कंपनीज तो आधे में ही प्रोजेक्ट छोड़ के चली जाएंगी। तो ये सारी चीजें समझने के लिए आपको प्लानिंग समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ साइट का नॉलेज, बस हम साइट पे काम करवाते चले जा रहे हैं बिना फ्यूचर का सोच के, बिना पास्ट का सोच के, उससे कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एक प्रोजेक्ट के 3-4 फेजेस होते हैं, फॉर्मुलेशन फेज, मोबिलाइजेशन फेज, एंड देन फाइनली कंस्ट्रक्शन एंड इंप्लीमेंटेशन फेज, जब एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट्स। देन अभी हम बेसिक चीजें समझेंगे। व्हाट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग? प्रोजेक्ट प्लानिंग इज अ डिसिप्लिन फॉर स्टार्टिंग हाउ टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम, यूजुअली विद डिफाइंड स्टेजेस एंड विद डेजिग्नेटेड रिसोर्सेज। प्रोजेक्ट प्लानिंग एक नॉर्मल, एक जस्ट अ काइंड ऑफ साइंस कि कैसे हम इस प्रोजेक्ट को पर्टिकुलर टाइम में खत्म करेंगे। अगर ये प्रोजेक्ट मुझे साल भर में खत्म करना है तो मुझे पर डे, तो मुझे ये समझ काम करना है, फिर मुझे पर डे कितना काम करना है, फिर मुझे आज इतना अगर काम करना है तो उसके लिए मेरे साइट पे कितना लेबर होना चाहिए, कितना मटेरियल होना चाहिए, कितनी मशीनरी होना चाहिए। ये सारे रिसोर्सेज, ये सारी चीजें प्लानिंग के अंडर आती है। जब आप टेक्निकली चीजें समझना स्टार्ट कर देते हो कंस्ट्रक्शन के बारे में, वो सब कुछ कम्स अंडर प्रोजेक्ट प्लानिंग। वट एवर एक्टिविटीज वी परफॉर्म बिफोर एक्चुअल, जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है उसके पहले हम जितना भी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, ऑल दोस थिंग्स कम्स अंडर project planning. Then second thing is what actually activity method statement is. So it is a step by step methodology guidelines on how an activity will be performed. For example, concreting. तो कंक्रीटिंग कैसे होगी, उसके पीछे एक स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी होती है कि सबसे पहले शटरिंग पे आपने शटरिंग ऑयल लगाया जो अप्रूव्ड ऑयल है, उसके बाद आपने वैक्यूम से उसे क्लीन किया, उसके बाद आप पाइपलाइन सेटअप करेंगे, पाइपलाइन सेटअप करने के बाद आप कंक्रीटिंग स्टार्ट करेंगे। जब कंक्रीटिंग हो रही होगी कि आप -5 mm +5 mm लेवल पे आप कंक्रीट को लेवल करते जाएंगे। फिर जब कंक्रीट हो जाएगा तो आपको कितने दिन तक उसकी क्योरिंग करना है, फिर कितने दिन तक आपको बैक प्रॉपिंग करके रखना है, तब तक आप प्रॉप्स नहीं हटा सकते। हर एक्टिविटी की एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है जो हर कंपनी फॉलो करती है, जो थोड़ी बहुत 5 to 10% कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। हर चीज की आईएस कोड में स्टेप्स लिखी हुई है, दैट इज नोन एज एक्टिविटी मेथड स्टेटमेंट। ये हमें समझना क्यों जरूरी है, जब तक हमें टेक्निकल एक्टिविटी मेथड स्टेटमेंट पता ही नहीं है उस एक्टिविटी का, हमें उसका ना कभी शेड्यूल पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं टू परफॉर्म पर्टिकुलर एक्टिविटी। देन एक्टिविटी सीक्वेंसिंग, ये तो हो गया हमने उस एक्टिविटी को लिया है। देन व्हाट एक्चुअली एक्टिविटी सीक्वेंसिंग इज? एक्टिविटी सीक्वेंसिंग involves the accurate identification of constraints, relationships among activities and establishing the order in which the activities will be accomplished. देन आता है हमारा एक्टिविटी सीक्वेंसिंग। पहले तो हमने एक एक्टिविटी में क्या क्या करना पड़ेगा वो समझ लिया। एक्टिविटी सीक्वेंसिंग का मतलब यह है कि कंक्रीटिंग के बाद ऊपर के कॉलम बनना स्टार्ट होंगे, ये सेकंड एक्टिविटी हो गई। कॉलम बांधना हमने स्टार्ट कर दी, उसके बाद कॉलम चेक होंगे, उसके बाद कॉलम का हम शटर लगाएंगे। कॉलम का शटर लगाने के बाद हम स्लैब की शटर ठोकेंगे। स्लैब का शटर होने के बाद हम बीम बीम का स्टील बांधेंगे, उसके बाद हम बॉटम जाली लगाएंगे, फिर हम टॉप जाली लगाएंगे। ये जो भी एक के बाद एक एक्टिविटी होती है उसे हम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। तो हमें हर एक्टिविटी को भी डिटेल में जानना जरूरी है अगर आप
कभी लाइफ में प्लानर बनना चाहते हैं तो, एंड सेकंड आपको सीक्वेंसिंग समझ में आनी चाहिए कि किसके बाद क्या होता है। वो सारी चीजें आपको साइट पर काम करके साल 2 साल 3 साल समझ में आ जाता है। देन सबसे लास्ट चीज की प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होती है। तो फाइनली हमने सारी एक्टिविटीज को जब एक के बाद एक सीक्वेंसिंग कर लिया है, फिर उस हर एक्टिविटी में जब हम स्टार्ट माइलस्टोन्स फाइनल कर देंगे, उस पूरी चीज को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग इज अ प्रोजेक्ट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द लिस्टिंग ऑफ एक्टिविटीज, deliverables, milestones within project. A schedule also usually includes a planned start date, finish date, then duration of every activity, resources assigned to each activity. ये सारी चीजें जब हो जाती हैं, then that is known as a project that थिंक फिफ्थ शेड्यूलिंग। ये तो हो गया, हमारा शेड्यूल बन के रेडी हो गया। उसके बाद व्हाट एक्चुअली इज प्रोजेक्ट ट्रैकिंग। अब जब ये हमारा शेड्यूल बन के रेडी हो गया, जब हमारे साइट पर काम स्टार्ट होगा, तो हम डेली उसे मॉनिटर करेंगे कि हम मैंने आई हैड प्लान्ड कि 25 जुलाई से ये संडे से ये 25 जुलाई को ये स्लैब कास्ट हो जाना चाहिए, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस 25 की जगह वो स्लैब 27 जुलाई को कास्ट होता है। तो इसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, डेट बाय डेट, आइटम बाय आइटम सब कुछ मॉनिटर करना कि क्या डेट हमने प्लान करी थी और उसकी जगह एक्चुअली क्या डेट पर क्या हुआ, क्या रीजंस थे, फिर कैसे हम उस डिले को कैचअप करें, क्योंकि क्लाइंट को तो आप वो डेट कमिट कर चुके हो। अगर गवर्नमेंट से आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि ये प्रोजेक्ट में 3 इयर्स में कंप्लीट कर दूंगा, तो आपको वो प्रोजेक्ट 3 इयर्स में कंप्लीट करके देना है। अगर आप उस प्रोजेक्ट को 3 इयर्स 2 मंथ्स में भी कंप्लीट करेंगे, तो वो 2 मंथ्स की आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस लगेंगे, आपका आपके काफी बिल में से डिडक्शंस होंगे, बहुत कुछ हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज जो भी आपका क्लाइंट के साथ साइन हुआ है। इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट ट्रैकिंग इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथड यूज्ड टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ टास्क्स इन अ प्रोजेक्ट। बाय ट्रैकिंग योर प्रोजेक्ट यू कैन कंपेयर एक्चुअल टू प्लान्ड प्रोग्रेस। एक्चुअल प्रोग्रेस क्या हो रही है आपके प्रोजेक्ट की, कितना आपका प्रोजेक्ट गड्ढे में है, पानी में है, ये हमें इससे ट्रैकिंग से पता चलता है। प्लान तो सब लोग बहुत अच्छा अच्छा कर लेते हैं, बट एक्चुअली आपका प्रोजेक्ट कितना गड्ढे में है वो हमें प्रोजेक्ट ट्रैकिंग करके पता पड़ता है। एंड देन वो इश्यूज आइडेंटिफाई करना, उसे हम प्रोजेक्ट ट्रैकिंग कहते हैं। Then finally what project monitoring and controlling is। monitoring and controlling, जो भी आपको इश्यूज पता चले उससे हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे हम प्रोजेक्ट को वापस ट्रैक पर लेके आएंगे, दैट इज प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। देन जब अब बात करते हैं हम एमएसपी की। जब आप एमएसपी में एंटर कर चुके हैं, तो दो एक्टिविटीज जब आप एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एक्टिविटी इज स्टील रिइंफोर्समेंट, कॉलम रिइंफोर्समेंट टाइम, एंड सेकेंड एक्टिविटी इज कॉलम के शटर लगाना। सो इन जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें 4 टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टास्क लिंक्स that are there in between those activities. The first one is finish to start, like this, finish to start. Second is start to start, that is when both the activities will start simultaneously. Third one is finish to finish, and fourth one is start to finish. Okay, there are this 4 kinds of task links that are अवेलेबल इन एमएसपी। जब भी हम कोई भी एक्टिविटीज एंटर करते हैं, अपने लाइन से सारी एक्टिविटीज एंटर कर दी, अब उन्हें लिंक करना है हमें, ताकि यू कैन प्रिपेयर अ फाइनल शेड्यूल। सो फॉर दैट ये 4 टाइप के टास्क लिंक एक्चुअली इतना बेसिक में। देर आर सम पीपल हु आर थिंकिंग दैट अरे यार ये तो सब यूट्यूब पे ही मिल जाता है, यूट्यूब जैसा क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो यूट्यूब जैसा एक्चुअली स्टार्टिंग में इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये वो बेसिक चीजें उन लोगों के लिए है जिन्होंने लाइफ में कभी प्लानिंग में काम नहीं किया है। तो ये अज्यूम कर रहा हूं मैं कि उन्हें ये सब चीजें नहीं पता होंगी कि कैसे एक्टिविटीज लिंक होती हैं, you know how to prepare a schedule. If those people who are already master in Microsoft project, well and good, you can just have a revision. This is just consider it like a revision for yourself. Maybe when we will discuss the advanced level, that that may be helpful for you. Okay, so but I have not be everyone about
So the first kind of relationship is finish to start relationship. It simply means that B activity, that is your second activity, can only start. Practical example, real life example is आपने सारे कॉलम्स का रीइंफोर्समेंट लगा दिया, आपने सारे कॉलम्स का रीइंफोर्समेंट चेक कर लिया, उसके बाद ही आप कॉलम का शटल लगाना स्टार्ट कर सकते हैं. सो दैट इज फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप. जब एक्टिविटी ए फिनिश हो जाएगी देन ओनली एक्टिविटी बी कैन स्टार्ट. दैट इज नोन एज अ फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप. एमएसपी में जब आप गैंट चार्ट देखेंगे तो एमएसपी में दिस इज एक्टिविटी ए, दिस इज एक्टिविटी बी. इन दिस वे जब आपको कनेक्शन दिख रहा है टू एक्टिविटीज में, दैट इज नोन एज फिनिश टू स्टार्ट. जो ए का एंड टेल है दैट इज लिंक्ड टू द फर्स्ट टेल ऑफ एक्टिविटी बी. दिस इज एमएसपी में ऐसे डिस्क्राइब होता है या फिर ऐसा कर्व्ड भी डिस्क्राइब्ड होता है, बट द होल पॉइंट इज the end part of activity A will be connected to the start part of activity B. Okay, this is known as a finish to start relationship. Second kind of रिलेशनशिप स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप. इसका सिंपली ये मतलब है कि जब दो एक्टिविटीज साथ में पैरेलली स्टार्ट हो रही हैं, उस केस में इट इज नोन एज अ स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप. फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में दो फ्लैट्स हैं, दो फ्लैट्स में मैं पैरेलली ब्लॉक वर्क साथ में स्टार्ट कर रहा हूं और मैंने अपने ब्लॉक वर्क ऑफ फ्लैट नंबर ए, जो भी हो सकता है, फ्लैट नंबर 501, अनदर कैन बी ब्लॉक वर्क ऑफ फ्लैट नंबर 2, फ्लैट ब्लॉक वर्क ऑफ फ्लैट 502, या फिर दो फ्लोर्स हैं, फोर्थ फ्लोर एंड फिफ्थ फ्लोर, दोनों फ्लोर्स पे इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग, मैं ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क साथ में स्टार्ट कर रहा हूं, तो उस केस में both the activities will be linked as start to start. That is known as start to start relationship. ये जब दोनों एक्टिविटीज का स्टार्टिंग टेल, दैट इज एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी, ये दोनों का स्टार्टिंग टेल जब स्टार्टिंग टू स्टार्ट कनेक्टेड है, दिस ये देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि देयर इज अ स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द एक्टिविटीज. व्हाट इज दिस SS प्लस 3D? दिस इज एक्चुअली प्लस 3 days. इसका ये मतलब है कि ये दोनों एक्टिविटीज साथ में स्टार्ट होनी है विद अ गैप ऑफ 3 days. दैट इज जब एक एक्टिविटी स्टार्ट होगी उसके 3 दिन बाद सेकंड एक्टिविटी स्टार्ट होगी. दैट इज नोन एज SS प्लस 3 days. इसे हम लैग कहते हैं, ये हम आगे और डिटेल में अभी देखेंगे, बट दैट वाज द सेकंड काइंड ऑफ रिलेशनशिप, स्टार्ट टू स्टार्ट. थर्ड इज फिनिश टू फिनिश. फिनिश टू फिनिश का ये मतलब एक्टिविटी बी, फर्स्ट एक्टिविटी को हम प्रेडेसेसर एक्टिविटी बोलते हैं, सेकंड एक्टिविटी को हम सक्सेसर एक्टिविटी बोलते हैं. ये जो दो एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी, चाहे कभी भी ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई हो, बट ये दोनों एक्टिविटीज जब फिनिश सेम डेट पर होती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फिनिश टू फिनिश काइंड ऑफ लिंक. ये बोथ एक्टिविटीज हैं, दोनों का जब फिनिश टेल हमें कनेक्टेड दिख रहा है, दैट मींस कि ये दोनों एक्टिविटीज फिनिश साथ में होंगी. अनदर एग्जांपल यहां आपको दिख रहा है, दोनों एक्टिविटीज के फिनिश टेल कनेक्टेड है. दिस इज नोन एज फिनिश टू फिनिश काइंड ऑफ रिलेशनशिप. ये दोनों एक्टिविटीज स्टार्ट अलग अलग टाइम पर हुई है. ये एक्टिविटी इस पर्टिकुलर टाइम पर स्टार्ट हुई है, ये एक्टिविटी इस पर्टिकुलर टाइम पर स्टार्ट हुई है, बट ये दोनों एक्टिविटीज फिनिश साथ में होंगी ऑन द सेम डे. दैट इज नोन एज फिनिश टू फिनिश काइंड ऑफ relationship between two different activities. Then the last one is start to finish relationship. Then the start to finish really first one was finish to start, second is start to start, third is finish to finish, and fourth one is start to finish. ये फर्स्ट वाली का उल्टा है. दैट इज जब बी एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी उसके बाद एक्टिविटी ए स्टार्ट होगी. ये उसका अपोजिट रिलेशन है जो फर्स्ट वाला था. दैट इज एक्टिविटी बी कैन नॉट फिनिश अंटिल एक्टिविटी ए स्टार्ट्स. जब तक एक्टिविटी ए स्टार्ट नहीं होगी तब तक बी एक्टिविटी पूरी तरीके से फिनिश्ड नहीं मानी जाएगी. ये ऐसा इसका रिलेशनशिप होता है. ये हमारा एक्टिविटी ए है, ये हमारा एक्टिविटी बी है, तो बी का स्टार्ट ए के फिनिश से रिलेटेड है. दैट्स व्हाई इट विल बी नोन एज स्टार्ट टू फिनिश. तो ये चारों एरोज हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम एक्टिविटीज एंटर तो एमएसपी में कोई भी कर सकता है, जैसे हम एक्सेल में डेटा एंटर करते हैं, बट शेड्यूल बनाने के लिए उन्हें सारी एक्टिविटीज को आपको लिंक करना पड़ेगा. दैट इज इन चार तरीके से वो एक्टिविटीज सारी लिंक्ड होती हैं. अगेन स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू फिनिश, फिनिश टू स्टार्ट. ये हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब प्रैक्टिकली हम सॉफ्टवेयर पे वर्क करेंगे. उसके बाद कुछ और बेसिक टर्म्स मैं फटाफट लेता हूं जो हम प्रेडेसेसर एक्टिविटी बोलते हैं. जो दूसरा टास्क है उससे हम सक्सेसर एक्टिविटी बोलते हैं. प्रेडेसेसर टास्क इज मतलब जो इंग्लिश में भी प्रेडेसेसर का मतलब जो कहते हैं, जो बाद में आता है उससे हम सक्सेसर कहते हैं. ये नॉर्मल इंग्लिश के टर्म्स है. सो एमएसपी में भी वही सेम है. दिस इज प्रेडेसेसर एक्टिविटी, दिस इज
सक्सेसर एक्टिविटी. देन थर्ड इज लैग. ये लैग क्या होता है? देन this lag we need to understand that first when we you link two activities, उनके बीच में अगर आपको कुछ गैप देना है, फॉर एग्जांपल सेकेंड एक्टिविटी आफ्टर 2 days स्टार्ट होगा फर्स्ट एक्टिविटी के, that 2 days you can enter as +2 days and this is known as lag. देन लीड क्या होता है? लीड इज अगर सेकेंड एक्टिविटी आपका फर्स्ट एक्टिविटी से आपको 2 दिन पहले स्टार्ट करना है, FS-2 उसे हम माइनस से एंटर करते हैं, दैट इज नोन एज लीड. दैट इज फॉर एग्जाम्पल, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आपके साइट पर 30 कॉलम्स हैं, 30 कॉलम्स में से आपने फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप दे दिया, उसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे कॉलम्स के रीइंफोर्समेंट खत्म हो जाएंगे तभी मैं कॉलम के शटर लगाऊंगा. बट 30 कॉलम्स में से आपने डिसाइड किया है कि जब मेरे 15 कॉलम्स का रीइंफोर्समेंट हो जाएगा तो मैं पैरेलली शटर लगाना चालू कर दूंगा पीछे से, ताकि 2 दिन मेरे सेव हो जाएं. तो दैट इज नोन एज FS-2. ये 2 दिन बचे हुए कॉलम की शटरिंग भी चल रही है एंड बैलेंस कॉलम का रीइंफोर्समेंट भी चल रहा है, दैट इज नोन एज FS-2. ये अब ये हमारे एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम सारी देख चुके हैं. ये एक हमारा नॉर्मल स्क्रीन होता है एमएसपी का. दिस इज हाउ इट लुक्स. सो यहां से आई जस्ट स्टॉप द स्क्रीन शेयर एंड आई स्विच टू द सॉफ्टवेयर. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यस. सो जब भी व्हेन यू विल क्लिक ऑन एमएसपी, ये एक ऐसा स्क्रीन है जो हमारे सामने अपीयर होगा एमएसपी का. फर्स्ट ऑप्शन जो आपको आता है एक नॉर्मल ब्लैंक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का, दैट इज स्टार्टिंग से आपको अगर स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट, दिस इज अ ब्लैंक प्रोजेक्ट. आपको एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना है, एक्सेल से एक फाइल इंपोर्ट कर कर आपको शेड्यूल बनाना है. फिर कुछ चीजें इसमें ऑलरेडी एंटर्ड है, जैसे कमर्शियल प्रोजेक्ट का आपको कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ चीजें ऑलरेडी एंटर्ड होती हैं एमएसपी में बाय डिफॉल्ट. लेट मी शो यू सम schedule that I had already prepared during the previous batch of MSP जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. कैसा दिखता है मैं आपको उसका एक ब्रीफ दिखा देता हूँ, बिकॉज बहुत लोगों को डाउट आ रहा है कि सर ये तो आप बहुत ही बेसिक बता रहे हो, बट क्या करें, डेमो सेशन है यार, सबको लेके चलना है साथ में, बेसिक तो बताना ही पड़ेगा. बट दिस इज हाउ योर शेड्यूल विल लुक लाइक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स. ये हमारा एक पूरा एक्टिविटीज की लिस्ट हो गई. ये हमारा कंप्लीट शेड्यूल है, फ्लोर वाइज, एक्टिविटी वाइज, इसमें सारी एक्टिविटीज है. ये विथ फिनिशिंग हमने एक शेड्यूल प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था इन आवर लास्ट सेशन. सो लेट मी शो यू दिस शेड्यूल टू यू. पहले हमने एक मोबिलाइजेशन फेज होता है प्रोजेक्ट का, देन नेक्स्ट इज सम एक पूरा एग्जीक्यूशन फेज, कैसे कैसे क्या क्या एक्टिविटीज होंगी फ्लोर वाइज, पूरे सारे सिविल वर्क्स, देन ऑल दी फिनिशिंग वर्क्स, जिप्सम, पुट्टी, सारा पूरा एक शेड्यूल, टेरेस वाटर प्रूफिंग, फाइनली स्नैगिंग एंड हैंड ओवर तक कंप्लीट, देन डीमोबिलाइजेशन फेज, एंड देन फाइनली प्रोजेक्ट के क्या क्या माइलस्टोन्स थे, कब कब हमें पेमेंट मिलेगा, क्या ये प्रोजेक्ट के माइलस्टोन्स हैं, ये सारे माइलस्टोन्स, कब कब क्लाइंट से रिव्यू मीटिंग होंगी, ये सारा डेटा इसमें एंटर्ड है. ये हो गया आपके टास्क नेम्स एंड देयर पर्टिकुलर एक्टिविटी की सारी ड्यूरेशंस हो गई. ये हर एक्टिविटी की प्लान्ड स्टार्ट डेट हो गई, प्लान्ड फिनिश डेट, उसके बाद बेसलाइन स्टार्ट, बेसलाइन फिनिश, ये सब चीजों का टर्म्स आपको समझ में आ जाएगा करते करते. प्रोजेक्ट का बेसलाइन ड्यूरेशन, देन एक्चुअल प्रोजेक्ट की बेसलाइन कॉस्टिंग कितनी है, उसके बाद एक्चुअल स्टार्ट कैसे होगा प्रोजेक्ट, एक्चुअल फिनिश कैसे होगा प्रोजेक्ट में, एक्चुअल कॉस्ट कितनी लग रही है टिल दैट डेट, जिस दिन मैं प्रोजेक्ट ट्रैक कर रहा हूं उस डेट तक कितना परसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो ये 5% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं दैट वी विल, ये पूरा हम लोग उसमें कंसिडर करेंगे. देन ये हमारी रिसोर्स शीट होती है, जिसमें सारे हम मटेरियल एंटर करते हैं, मटेरियल रिसोर्सेस, सब चीज के रेट्स, कॉस्ट पर यूज, कैसे वो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा. देन हमारे लेबर रिसोर्सेस, कारपेंटर, फिटर, फोरमैन, हमारे इंजीनियर्स, सब उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाएंगे. कौन से ग्रुप में कौन सा रिसोर्स हो रहा है, किस चीज की कितनी रेट चल रही है पर आवर पर डे, सब कुछ हमने इसमें कंसिडर किया था. देन हमारी मशीन्स, जेसीबी, हाइड्रा, बॉबकैट, देन उसके बाद ये सारे हमारे रिसोर्सेस हो गए. देन देर इज दिस रिसोर्स यूसेज शीट,
जिसमें वर्क वाइज ये सारा रिसोर्स का यूसेज एंटर होता है आवर्स वाइज। देन दिस इज अनदर टास्क यूसेज शीट, ये सारा चीजें हम डिस्कस करेंगे। डेट वाइज कितना अमाउंट का काम हो रहा है आपकी साइट पर, कौन से लेबर कितने आवर्स वर्क कर रहे हैं, सब कुछ डेटा इसमें आ जाता है। कितनी कॉस्ट अभी तक लग चुकी है, कितना वेरिएशन है, कितना आपने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया है, क्यों आपने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया है, रिमेनिंग कितना बजट आपका बाकी है, एक्चुअल आपका क्या क्या खर्चा होगा, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे हमारी क्लास में। एंड देन मैं आपको एक अर्नड वैल्यू भी दिखा देता हूँ। ये एक हमारा टाइमलाइन व्यू भी होता है, बहुत सारा डिफरेंट, बहुत सारा चीजें हैं एक्चुअली एमएसपी में। ये एक बेसिक प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है हमारी, कौन से डेट से प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, व्हाट विल बी योर करेंट डेट, स्टेटस डेट, क्या होता है करेंट डेट, स्टेटस डेट, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। देन फर्स्ट थिंग व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज कैलेंडर कैसे एंटर करते हैं एमएसपी में। यहाँ से प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है, तो हमने सारे हॉलीडेज ईयर वाइज हम लोग एंटर करते हैं, वीक वाइज हमारा कितने दिन कौन से रिसोर्स का काम चलेगा, कौन सा रिसोर्स का किस दिन ऑफ रहेगा, अलग अलग रिसोर्सेस का भी हम कैलेंडर बनाते हैं। जैसे कारपेंटर्स हैं, कारपेंटर्स अगर होली दिवाली पे ऑफ लेते हैं तो कारपेंटर्स का कैलेंडर हमें अलग बनाना पड़ेगा। ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैलेंडर्स होते हैं। ये सारी रिपोर्ट्स जो आपको आपके अपर मैनेजमेंट से शेयर करनी पड़ेंगी विथ टाइम एंड व्यू। ये हमारी बेसलाइन कॉस्ट कितनी है, उसकी जगह एक्चुअल कॉस्ट हमारी क्या आ रही है, कितना परसेंटेज प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, ये सारी चीजें हम एमएसपी में कवर करेंगे। देन फर्स्ट थिंग जो आप एमएसपी ओपन करते से ही, ये तो एडवांस चीजें हो गई, एमएसपी ओपन करते से ही जो फर्स्ट थिंग आप को समझना है। सर देयर इज अ डाउट, सॉरी आई विल इंटरप्ट इन बिटवीन। सर आई एम अ बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट, क्या मैं एलिजिबल हूँ इस कोर्स के लिए? सी यस, यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज थोड़ा सा भी है, आपको ये सॉफ्टवेयर प्लानिंग में फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। अभी आप एकदम से प्लानर नहीं बन जाएंगे जब तक आपको इंजीनियरिंग के टेक्निकल चीजें बहुत सारी डिटेल में नहीं आती हैं, बट डेफिनेटली दिस कोर्स विल गिव यू एन अपर हैंड, आपके रिज्यूमे में एक एडिशन हो जाएगा। जब आप इंजीनियरिंग के बाद जॉब इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करेंगे तो बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें एमएसपी प्राइमावेरा ये सारी चीजें पहले से आती हैं। तो जब आपके फ्रेंड्स शायद विल नॉट बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू में भी ना सिलेक्ट हो, बट एटलीस्ट आप इस कोर्स से इंटरव्यूज तक तो पहुंच जाएंगे कि इंजीनियरिंग के बच्चे को अगर ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर आता है तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अ इंटरव्यूअर टू डिस्कस एंड टू अंडरस्टैंड। तो ऑब्वियसली इट विल गिव यू एन अपर हैंड। Yes, so once when we start with the software, ये तो एक already developed schedule हो गया। When you start with the software, this is the screen that will open and this will be uh, a new schedule when you need to prepare। ऐसा एक screen open होती है पूरी, जहां पर हम different different यहाँ पर पूरा Gantt chart आएगा, यहाँ पर हमारी different activities आएंगी। Let me show you if I have uh, यस दिस, ये अर्नड वैल्यू का पार्ट है पूरा जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। प्लांट वैल्यू, अर्नड वैल्यू, शेड्यूल वेरिएंस, परसेंटेज, शेड्यूल वेरिएंस इंडेक्स, ये सारी चीजें अर्नड वैल्यू का पार्ट है जो एकदम एडवांस लेवल है, जो हम सबसे लास्ट के 2-3 दिन में देखेंगे। एनीवेज, तो ये एक स्क्रीन ओपन होती है हमारी जब हम स्टार्ट करते हैं विथ एमएसपी। कैलेंडर सेटअप करने से भी पहले हमारा सबसे फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज चेंज इन सेटिंग्स। हमारे हिसाब से हमें सेटिंग्स चेंज करनी होती है, तो व्हाट विल डू,
जो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ऑटोकैड हो, रेविट हो, प्राइमावेरा, एमएसपी, सैप, कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप फर्स्ट टाइम उसमें काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी कंपनी के हिसाब से, आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप सेटिंग्स चेंज करते हैं। जैसे अगर आप ऑटोकैड में वर्क कर रहे हैं तो आपकी कंपनी आर्किटेक्चरल इंडाइसेस में वर्क करती है या इंजीनियरिंग इंडाइसेस में वर्क करती है, आपको सारा डेटा मीटर में चाहिए कि आपको सारा डेटा फिट्स में चाहिए कि इंचेस में चाहिए, वो सारा चीजें हमें मैन्युअली एंटर करना पड़ता है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर में सबसे फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज just to change the settings. So in the same way हम MSP में भी वही करेंगे, सबसे first thing to change all the settings। कैसे हम करेंगे वो, we'll go to this, जैसा एक्सेल में होता है फाइल एंड ऑप्शंस, ये सारे हमारी सेटिंग्स ओपन हो गई जो हम हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से हमारे देयर इज अनदर नॉलेज सर, इस कोर्स से टेक्निकल नॉलेज मिलेगा? यस, टेक्निकल नॉलेज आपको बहुत मिलेगा एक्चुअली। अगर आपने मेरे पुराने भी कोई डेमो सेशन देखे होंगे तो मेरा ट्रेनिंग देने का या पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं थ्योरी पे ज्यादा ना फोकस करते हुए, मेरी आधी बातें साइट से रिलेटेड ही होती हैं, तो आपको बहुत कुछ साइट के बारे में, प्रोजेक्ट प्लानिंग के रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज काफी काफी हद तक मिल जाएगा। ऑब्वियसली मैं आपको पूरा मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस तो नहीं दे सकता 20 डेज में, बट यस काफी हद तक आपको टेक्निकल नॉलेज इस कोर्स से एमएसपी के साथ साथ मिल जाएगा। सिर्फ एमएसपी नहीं हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड डाउट इज सर, आई बिलोंग टू एमएपी, होप विल गेट शेड्यूल एक्टिविटी फॉर एमएसपी आल्सो विद सिविल एक्टिविटी प्लानिंग। यस सर, डेफिनेटली। अगर आपने वो शेड्यूल देखेंगे जो मैंने ओपन किया था तो उसमें मैंने एमईपी की भी एक्टिविटीज सारी लिंक करी थी। जस्ट स्मॉल एग्जांपल, हमारा सिविल का स्लैब हो जाने के बाद जब प्रॉप्स रिमूव होते हैं तो फर्स्ट थिंग आपका फिश वायर पुलिंग होता है। फिश वायर पुलिंग के बाद जब हमारा ब्लॉक वर्क या ब्रिक वर्क हो जाता है तो सेकंड एक्टिविटी आपका वॉल कॉन्ड्यूटिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूटिंग होता है। तो ये सारी चीजें मैं जो शेड्यूल प्रिपेयर करूंगा वो एज अ प्लानर ही मैं प्रिपेयर करूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ सिविल वाले हैं या एमईपी वाले हैं। मुझे तो पूरा प्रोजेक्ट का प्लान कंप्लीट करना है, उसमें फायर फाइटिंग, प्लम्बिंग, आपका ड्रेनेज वर्क्स, सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। होप योर डाउट इज क्लियर। सो नाउ दिस इज दी बेसिक सेटिंग्स जो हमें चेंज करनी पड़ती है। फर्स्ट तो कुछ जनरल सेटिंग्स हैं। व्यू हमें कैसा चाहिए, तो हम जनरली फर्स्ट हमारा डिफॉल्ट व्यू गैंट विद टाइमलाइन ही सिलेक्ट करते हैं हमेशा। व्हाट इज गैंट विद टाइमलाइन? ये ऊपर टाइमलाइन आ रहा है, ये गैंट चार्ट आ रहा है और ये हमारे यहाँ पे एक्सेल जैसा डेटा एंटर करने के लिए आ रहा है। दिस इज अवर नॉर्मली डिफॉल्ट व्यू, दिस इज नोन एज गैंट विथ टाइमलाइन व्यू। डेट का फॉर्मेट आपको कैसा चाहिए ये तो आपके ऊपर है, ये इसमें मैं कुछ भी नहीं, मतलब इसमें पढ़ाने का कुछ भी नहीं है। देन सेटिंग्स हमारी मेन जहां से स्टार्ट होती है वो डिस्प्ले सेटिंग्स। कैलेंडर टाइप हम हमेशा जॉर्जियन कैलेंडर पे रखेंगे, पूरे वर्ल्ड में जॉर्जियन कैलेंडर ही फॉलो होता है। ये हिजरी कैलेंडर और बुद्धिस्ट कैलेंडर हम लोग नहीं फॉलो करते हैं। जो नॉर्मल हमारे हिंदी और इंग्लिश कैलेंडर है वो सब जॉर्जियन कैलेंडर ही है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें चेंज करना है, करेंसी ऑप्शंस। जब आप आपके उसमें एमएसपी फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो करेंसी आपके इसमें यूएसडी दिखाएगा, दैट इज यूएस डॉलर्स। वो आपको यहाँ से चेंज करके आईएनआर करना पड़ेगा, बिकॉज ऑल द रिसोर्सेज एवरीथिंग वी आर गोइंग टू एंटर इन आईएनआर। उसका सिंबल, प्लेसमेंट, ये सब आपको चेक, आपको आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। आपको ऐसा रखना है या 1 रुपी आपको ऐसा दिखाना है, कौन से डेसिमल डिजिट्स तक आपको कॉस्टिंग ट्रैक करनी है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। Then the main important settings for a planner as a planner are this all this scheduling settings. वर्क वीक स्टार्ट्स ऑन ऑब्वियसली ऑन मंडे, हमारे यहाँ वर्क वीक मंडे से स्टार्ट कंसिडर किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स इसमें डिफॉल्ट जनवरी है, बट इंडिया में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स अप्रैल से होता है, मार्च में एंड होता है। होप आप लोगों को ये बात पता है। तो फाइनेंशियल ईयर में हमें अप्रैल हम सेट करेंगे। डिफॉल्ट स्टार्ट टाइम एंड टाइम आप आपकी कंपनी के हिसाब से डालेंगे। मेरी कंपनी में अगर 9 o'clock काम स्टार्ट होता था एंड ऑफिशियल टाइम, वैसे तो काम डे नाइट चलता है कंस्ट्रक्शन में, सबको पता है, बट ऑफिशियल टाइम क्या है वो अगर 6 बजे तक था तो यू विल एंटर टिल 6 o'clock। देन व्हाट आर दी आवर्स पर डे, हाउ मेनी आवर्स पर डे योर कंपनी वर्क्स। जैसे 9 घंटे आपके साइट पे ऑफिशियल वर्किंग है, जिसमें से 1 आवर लेबर को और आपको लंच ब्रेक मिलता है, 4 आवर्स पहले 4 आवर्स बाद में। अगर ये ऑफिशियल है तो 8 आवर्स पर डे वी विल एंटर। कितना आवर्स पर वीक, हम सैटरडे तक वर्किंग कंसिडर करके 8 into 6 48 आवर्स यहाँ पे डालेंगे। अगर किसी का ऑफिशियली एज पर कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अनऑफिशियली, ऑफिशियली भी अगर किसी का संडे वर्किंग होता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट कि मंडे टू संडे आपका वर्किंग है, लेबर संडे को भी फुल डे काम करती है ना कि हाफ डे, और आप भी हर संडे जाते हैं, ऑफिशियली अगर आपका संडे वर्किंग है तो उस हिसाब से यू कैन एंटर चेंज आवर्स पर वीक, कितना डेज पर मंथ। जनरली हम 4 से 5 संडे कंसिडर करते हैं,
तो आप 25 से 26 डेज वर्किंग कंसिडर कर सकते हैं एक मंथ में। ये सब चीजें हम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि जब हम हर एक एक्टिविटी का ड्यूरेशन एंटर करते हैं, रिसोर्सेस एंटर करते हैं, तो उसकी कॉस्ट ये सब इस हिसाब से लेगा। फॉर एग्जांपल कारपेंटर का रेट आपने डाल दिया, कारपेंटर का रेट आपको पता है कि कारपेंटर फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं मैं 800 रुपए पर डे लेता है। अगर 800 रुपीज पर डे कारपेंटर लेता है तो आपने एमएसपी में तो पर आवर में एंटर कर दिया 100 पर आवर। अगर यहाँ पे आपने 8 आवर्स सिलेक्ट नहीं किया, उसकी जगह आपने 10 आवर्स सिलेक्ट कर दिया, तो एमएस देन शो असाइनमेंट यूनिट्स एज अ डेसिमल, या फिर आपको परसेंटेज कैसे दिखाना है उस पर डिपेंड करता है। जो भी आप रिसोर्सेज एंटर कर रहे हैं, मैं डेसिमल में प्रेफर करता हूँ। डेसिमल मतलब एक कारपेंटर, दो कारपेंटर, या फिर 10.5 एम क्यूब ऐसा कंक्रीट हुआ, तो डेसिमल में ही मैं प्रेफर करता हूँ। Then new tasks are manually or auto scheduled. So ये एक कौन सी टास्क मैन्युअली शेड्यूल्ड होता है, कौन सा ऑटो शेड्यूल्ड होता है, ये मैं आपको डिटेल में सेशन में फर्स्ट सेशन में ही आई डिस्क्राइब दिस टू यू। देन ड्यूरेशन, एक्टिविटीज का ड्यूरेशन आपको कैसे एंटर करना है। जैसे आपका अगर कंक्रीट छोटा है 1 ही घंटे में हो जाएगा, आपको सारी एक्टिविटीज आवर्स में एंटर करनी है। जनरली हम कंस्ट्रक्शन में डेज वाइज चीजें एंटर करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतना कट टू कट कंस्ट्रक्शन नहीं होता है कि आपने लेबर को बोल दिया मुझे 3 घंटे में चाहिए तो आपको 3 घंटे में मिलेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। पूरा दिन वो लेबर जरूर लेगी। तो हम लोग ड्यूरेशन हर एक्टिविटी का डेज में जनरली ट्रैक करते हैं। वर्क मतलब क्वांटम ऑफ वर्क को हम आवर्स में ट्रैक करते हैं। एंड डिफॉल्ट टास्क टाइप, दैट इज 3 टाइप के टास्क टाइप्स होते हैं, फिक्स्ड यूनिट या फिक्स्ड ड्यूरेशन या फिक्स्ड वर्क। इस पे पूरा डिपेंड करेगा कि आपका रिसोर्स लोडेड शेड्यूल है या नॉन रिसोर्स लोडेड शेड्यूल है। अगर आपका रिसोर्स लोडेड शेड्यूल है तो आप फिक्स्ड यूनिट्स में सिलेक्ट करके उस हिसाब से चेंजेस करेंगे प्रोजेक्ट ट्रैकिंग में। अगर आपका नॉन रिसोर्स लोडेड शेड्यूल है, आपने जो रिसोर्सेज एंटर करें उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक्टिविटी की ड्यूरेशन से मतलब है 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, तो हम फिक्स्ड ड्यूरेशन पे रखेंगे। ये सारी चीजें आपको वाया दी कोर्स स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएंगी। न्यू टास्क आर एफर्ट ड्रिवन, इसका क्या मतलब है न्यू टास्क का एफर्ट ड्रिवन? इसका ये मतलब है कि अगर मैंने रिसोर्सेज थोड़े से भी चेंज किए, अगर मैंने 5 कारपेंटर्स की जगह 4 कारपेंटर्स कर दिए, तो जो एक्टिविटी 3 डेज में होनी थी वो ऑटोमेटिकली एमएसपी उसको 4 या 5 डेज में कर देगा, क्योंकि आपने रिसोर्सेज कम कर दिए। तो सब कुछ पूरा शेड्यूल का गेम रिसोर्स के हिसाब से चलेगा, तब हम इसको टेक करते हैं। अगर हमारा रिसोर्स लोडेड शेड्यूल नहीं है, देन यू विल नॉट टेक ऑन दिस, ऑल रिसोर्सेज आर एफर्ट ड्रिवन। देन टास्क विल ऑनर कंस्टेंट डेट्स, ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं कि जो हमने डेट एंटर करी है उसे ऑनर करेंगे टास्क। यस, वो उसकी कंस्टेंट डेट्स हो जाएंगी। देन शेड्यूल टास्क शुड शो शेड्यूल टास्क वार्निंग्स। यस, आप कुछ भी जब गलती करेंगे शेड्यूल में, बेसिक गलती, तो आपको एमएसपी खुद वार्निंग देगा। फॉर एग्जांपल, आपने रिसोर्सेज एंटर किए हैं कि मेरे पास 10 ही कारपेंटर्स हैं, और आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि मुझे आज की एक्टिविटी के लिए 15 कारपेंटर्स की रिक्वायरमेंट है, तो एमएसपी आपको खुद एरर दे देगा कि आपकी साइट पे 10 ही कारपेंटर्स अवेलेबल है। या तो आप अपने साइट पे रिसोर्सेज बढ़ाओ, नहीं तो आप यहाँ पे रिसोर्सेज कम करके प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन बढ़ाओ। एक रेड कलर की वार्निंग आ जाएगी आपको। तो ये सारी चीजें होती हैं वार्निंग्स, तो ये हम हमेशा ऑन रखते हैं, हमें हेल्प करता है ये। कैलकुलेट प्रोजेक्ट आफ्टर ईच एडिट, विल कीप इट एज यस, ताकि हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते जाएं। देन अपडेटिंग टास्क स्टेटस विल अपडेट रिसोर्स स्टेटस, यस, ये सब बेसिक बेसिक सेटिंग्स है। ये प्रूफिंग सेटिंग्स तो इंग्लिश की सेटिंग्स है, आप खुद देख सकते हैं। सेव आपको कहाँ पे करना है, इससे मेरा कुछ कंसर्न नहीं है। लैंग्वेज आपको कौन सी रखना है ये भी आप देख सकते हैं। देन फाइनली जो इंपॉर्टेंट है, अगेन शेड्यूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांस लेवल ऑफ सेटिंग्स, कितने लेवल तक आपको अंडू रखना है। तो मैक्सिमम 99 टाइम्स आप अंडू कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। उसके बाद आपको डिफॉल्ट स्टैंडर्ड रेट आपको पर आवर में रखने हैं या पर डे में रखना है, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कारपेंटर का रेट, लेबर का रेट, हर चीज का रेट आपको पर डे रखना है, 800 रुपीज कारपेंटर का, 400 रुपीज, सॉरी 550 सेमी स्किल्ड का, 350 to 400 अनस्किल्ड का, जो भी है आपको पर आवर में ट्रैक करना है प्रोजेक्ट के रेट्स को, या पर डे में ट्रैक करना है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन ये सारी बेसिक बेसिक चीजें हैं कि ऊपर का स्टेटस बार, स्क्रॉल बार दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। देन ये ब्रीफ कैसे आएगा, मिनट्स को मिनिन दिखाना है कि एम दिखाना है, क्या दिखाना है, वीक्स को डब्ल्यू के दिखाना है कि डब्ल्यू दिखाना है, या पूरा वो दिखाना है आपको, मंथ को आपको क्या शॉर्ट फॉर्म यूज करना है। ये क्यों है, ताकि जब आप एंटर करेंगे 3+4 डे, तो आप सिर्फ डी डी डाल के छोड़ सकते हैं। ये सब चीजों में ये यूज होता है, आपको आपके प्रोजेक्ट को कैसे दिखाना है। देन ये सब अर्नड वैल्यू का पार्ट है कि आपको पूरे प्रोजेक्ट में अर्नड वैल्यू एनालिसिस कैसे करना है, परसेंटेज कंप्लीट या फिजिकल परसेंटेज कंप्लीट।
फिर आपको बेसलाइन कौन सी कंसिडर करना है, देयर कैन बी 11 बेसलाइंस इन एमएसपी। फर्स्ट थिंग टू लर्न फॉर इंटरव्यू, कितने एमएस बेसिक मैक्सिमम बेसलाइन आप एमएसपी में सेट कर सकते हैं, दैट इज 11 बेसलाइंस। और ये फिर उसके बाद कुछ बेसिक सेटिंग्स है। तो ये सेटिंग्स थी जो हमें सबसे पहले प्रोजेक्ट में घुसते से ही चेंज करनी है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये कुछ बेसिक कस्टमाइजेशन है, ये इतना सच अभी फिलहाल सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो हम सबसे लास्ट में देखेंगे, बहुत माइनर चीज है। तो ये सेटिंग्स देखने के बाद जब हम हमारे हिसाब से सेटिंग्स चेंज कर देते हैं, देन हम सबसे पहली चीज जिससे स्टार्ट करते हैं वो होता है हमारा यहाँ पर कैलेंडर प्रोजेक्ट का सेटअप करना। सो नाउ आई विल स्टॉप राइट नाउ। आपको जो भी डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये एक बेसिक 40-45 मिनट्स का डेमो क्लास थी, वे बताने के लिए। इसको आप ऐसा कुछ भी मत कंसिडर कीजिए कि अरे ये सिर्फ बेसिक ले रहे हैं या फिर अरे ये तो बहुत एडवांस जा रहा है। ये सिर्फ एक डेमो क्लास थी, जस्ट टू introduce you with some basics of MSP. Now I'll just read out all your queries. सर ओनली बिल्डिंग्स ही पढ़ाने वाले हो या रोड या ब्रिज? यार जो शेड्यूल मैं बनाना सिखाऊंगा इसमें वो मल्टीज के और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के होंगे। अगर किसी का रिक्वायरमेंट है इंफ्रा का तो एक दिन में अलग से वो भी ले लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है उसमें। बट हमें कोई एक पर्टिकुलर चीज से स्टिक करना पड़ेगा थ्रू आउट द कोर्स, बिकॉज ऐसा एक दिन में शेड्यूल नहीं बन जाएगा, वो रोज थोड़ा थोड़ा समझ के हम पूरा शेड्यूल फाइनल कर पाएंगे। तो आई विल स्टिक टू रियल स्टेट, मल्टीज, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, मॉल्स, टाउनशिप्स, ये सारी चीजें मैं प्रेफर करूंगा। इंफ्रा का किसी को भी रिक्वायरमेंट है तो बता सकते हैं, मैं हाफ एन आवर एक आवर अलग से इंफ्रा पे भी ले लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं। सर हाउ टू गेट प्लेस्ड इन कंपनीज लाइक एसपी वर्क, प्लीज लेट मी नो एज अ सिविल इंजीनियर आफ्टर 4th ईयर। ओके यार एक्चुअली ये तो मैं टॉपिक क्लास में लेता हूँ, पहले एमएसपी के टॉपिक्स हम कवर डाउट्स कवर कर लेते हैं। वेयर कैन आई अप्लाई फॉर इंटरव्यू इफ वी आर फेमिलियर विद ऑटोकैड, रेविट, स्टेट प्रो एंड एमएसपी? ओके, ये भी मैं आपको बताता हूँ। सर सिचुएशन इज डिफरेंट नाउ, जो कंपनीज वैकेंसीज निकाल रही हैं वहाँ, ये तो मुझे समझ में नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज इलेबोरेट। समझ गया मैं, सिचुएशन इज डिफरेंट, बट आप क्या बोलना चाह रहे हैं आगे प्लीज आप बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगा। सो नाउ आई कम टू योर डाउट, कैसे आप प्लेस्ड हो? देखिए सबसे पहले प्लेस होने के लिए मार्केट कंस्ट्रक्शन का बहुत ज्यादा खराब है, बहुत हद से ज्यादा खराब है। तो आपको एडिशनल स्किल्स एक्वायर करना जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एमएसपी पढ़ो, आप दूसरे स्किल्स पढ़ो जिस चीज में आपका सिर्फ इंजीनियरिंग करने से तो अब कुछ भी नहीं होने वाला है। आज के टाइम में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस आप आईआईटी या एनआईटी से हैं। आप फर्दर स्टडीज के लिए ट्राई कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए ट्राई कर सकते हो जो हम लोगों ने किया। आपको वो नहीं करना है तो आपको इंजीनियरिंग करते करते ही 4th ईयर में बहुत सारे एडिशनल स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे। जैसे अगर आपको प्लानिंग फील्ड पसंद है, एमएसपी पढ़ो, प्राइमावेरा पढ़ो, टेक्निकल पार्ट समझो कैसे काम होता है। अगर आपको कॉस्टिंग में इंटरेस्ट है तो आप कॉस्टिंग से रिलेटेड कोर्सेज करो, बजटिंग हो गए, कॉस्टिंग हो गया, कैसे एक पूरे प्रोजेक्ट का बजट फाइनल किया जाता है, कौन करता है, क्या क्या हम उसमें रेट्स कंसिडर करते हैं, रेट एनालिसिस कैसे होता है एक एक्टिविटी का, वो सारी चीजों में जाओ। अगर आपको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो फिर ये ऑटोकैड, रेविट, स्टेट प्रो, इसमें घुस जाओ पूरी तरीके से। पहले एक फील्ड पकड़ लो कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, बट आपको इंजीनियरिंग के बाद बेसिक कुछ तो अपर हैंड चाहिए ताकि आपका इंटरव्यू सिलेक्ट हो और आप इंटरव्यू तक पहुंचो। नहीं तो अगर आपका एक बेसिक रेज्यूमे है तो आप आज की डेट में इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंच पाएंगे जब तक लोगों को 5-6 सर्टिफिकेट नहीं दिख रहे हैं। उसी जगह प्रो ट्रेनी और हम लोग आते हैं बीच में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एमएसपी सीखो, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है आप उस चीज के सॉफ्टवेयर को पकड़ो, बट आप सर्टिफिकेट्स लो। मतलब विदाउट एडिशनल सर्टिफिकेट्स, जब तक आप, अगर मैं इंटरव्यूअर हूं, मुझे नहीं दिखेगा कि सामने वाले में कुछ एक्स्ट्रा है दूसरे आदमी से, तो मैं क्यों आपका रेज्यूमे सिलेक्ट करूं और मैं आपको इंटरव्यू के लिए बुला के आपका भी टाइम वेस्ट करूं, मेरा भी टाइम वेस्ट करूं। ये सिचुएशन है आज के टाइम में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। तो पहले आप फील्ड पकड़ लो, उस फील्ड के से रिलेटेड आप फिर एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स लेना, सारा नॉलेज लेना स्टार्ट कर दो। अगर आपको आगे पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इज वेरी गुड। आपका प्लेसमेंट भी होगा, बड़ी कंपनीज में होगा, अच्छे पैकेज पे होगा, आपकी लाइफ स्टार्ट एक अलग लेवल पे होगी। बट अगेन उसके लिए 2 साल पूरे देने पड़ेंगे, तो वो सारी चीजें हैं। सर इज एमएसपी यूज्ड मच इन अब्रॉड और प्राइमावेरा इज प्रेफर्ड देयर? यार एक्चुअली इंडिया में और गल्फ में दोनों सॉफ्टवेयर इक्वली यूज होते हैं, प्राइमावेरा एंड एमएसपी। डिफरेंस ये है कि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में प्राइमावेरा ज्यादा यूज होता है, रियल स्टेट, कमर्शियल, ये सारे प्रोजेक्ट्स में एमएसपी ज्यादा यूज होता है। ऐसा नहीं है कि रियल स्टेट में लोग प्राइमावेरा नहीं यूज कर
प्राइमावेरा में होता है, रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, ये सारों में एक ईज होता है प्राइमावेरा यूज करने में, उसका एब्रॉड और इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सर आई एम निकमार पास आउट अनएम्प्लॉयड, एनी सजेशंस फॉर जॉब? यार ये मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, मतलब ये करते हैं इसे हम एंड में डिस्कस। एनी सजेशंस फॉर जॉब? यार भाई मतलब आपका अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, अगर आपका कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप डायरेक्टली एज अ फ्रेशर अभी निकमार पास आउट हैं, फिर तो लिंक्डइन, naukri.com, रेफरल्स, अपने सीनियर्स के रेफरल्स, जैसे मैंने तो अब जॉब छोड़ दिया है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे जैसे जो कुछ आपके दूसरे सीनियर्स हो पहचान वाले, उनके थ्रू कंपनीज में रेफरल्स, जहां आपको वैकेंसी दिखे, एक अपना एक अच्छा रेज्यूमे एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रिपेयर करके, आपको जहां जैसी भी आपको वैकेंसी दिखे आप अप्लाई करना शुरू करो, एंड जस्ट ट्राई टू समथिंग। अगर आपके पास निकमार ऑलरेडी है, जो चीजें आपने निकमार में आपको लगता है कि आपने मिस आउट कर दी, मेरा ध्यान ज्यादा मस्ती में था, मैंने नहीं ये चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया, तो भले ही आपके पास निकमार की डिग्री है, अगर आप वेल वर्स्ड नहीं हो उन सॉफ्टवेयर से निकमार के होने के बावजूद भी, तो आप भी फिर वो पैरेलली कुछ ना कुछ पढ़ना तो आप चालू कर दीजिए पैरेलली, क्योंकि दिन में 1 घंटा 2 घंटा निकालने में हमारा कुछ नहीं जाता है। अगर हम 4 घंटे दिन में जॉब सर्च करने में दे सकते हैं, तो 2 घंटे खुद के थोड़े से स्किल्स इंप्रूव करने में हम शायद दे सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ खराबी है। तो लिंक्डइन और ये सब पे फुल ऑन चालू हो जाओ, आप ऑलरेडी निकमार वाले हो, आपको जॉब मिल जाएगी। हाँ, हो सकता है कि आप फ्रेशर हो, शायद आपको पैकेज थोड़ा कम मिले, 6 महीना 1 साल सरवाइव कर लो, अभी इंडस्ट्री की बहुत बुरी हालत है, जो बिजनेस कर रहे हैं उनसे पूछो कैसे रो रहे हैं वो लोग। तो आज की डेट में अगले 1 साल अगर आपके पास जॉब है वही मैटर करता है, आपका पैकेज आपकी सैलरी कुछ भी मैटर नहीं करती है। और अगर थर्ड वेव आ गई तो फिर तो उसका भी मैं कुछ नहीं बोल सकता। फिर रिकॉर्डेड सेक्शन लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे? डेली जो आपको सेशन होंगे वो सारे सेशन रिकॉर्डिंग, एक प्रो ट्रेनिंग का एक पोर्टल है, वो पोर्टल पे आपको सबको अपना अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, एक बार आपने उस पर लॉगिन करके छोड़ दिया, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको रोज मिलेंगे। तो अगर आपका कुछ जॉब के वजह से, आपकी पढ़ाई के वजह से आप बाहर हैं, कुछ भी इशू आया उसके वजह से आपका वो लेक्चर छूट गया, तो आप वो पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद भी आपको अगर कुछ डाउट बचा, तो जब अपन नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तब मुझे बता दीजिए, तब मैं क्लियर कर दूंगा सेशन खत्म होने के बाद, लास्ट के 10-15 मिनट्स में। टाइमिंग फॉर रेगुलर बैच, दैट यू विल नीड टू यार आस्क द प्रो ट्रेनी टीम, आई थिंक सो 7 to 8 या 8 to 9 में से ही कुछ रहेगी, बिकॉज जो जॉब वाले लोग हैं जो ऑलरेडी वर्किंग है वो उस टाइम तक नहीं फ्री हो पाते हैं। Sir, can I have recording of this video? Yes, sir. This you need to ask from the ProTrainee team. They will provide you the recording of this video. Sir, can we get recorded session after completing the course so that we can be used in future? Yes, you will get all the recorded lectures daily. उसी दिन रात में जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया, आपको वो प्रेजेंटेशन मिलेगा। उसी दिन रात में जो मैंने एमएसपी पे काम किया, वो आपको एमएसपी फाइल मिलेगी, प्लस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। उसी दिन के मटेरियल्स आपको उसी दिन या लेटेस्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह 9-10 बजे तक मटेरियल्स मिल जाएंगे, मटेरियल का कोई इशू नहीं है। व्हाट अबाउट डूइंग मास्टर्स इन बिम मैनेजमेंट? यार दैट इज एक्चुअली वेरी गुड, बिम तो फ्यूचर है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सॉफ्टवेयर, जिसको करना है वो कर सकते हैं, जेन्युइनली वो फ्यूचर है, बट देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट बिम करने के बाद मुझे लाइफ टाइम उसी चीज से रिलेटेड फिर जॉब करना है रियल स्टेट में, और उन्हीं सब चीजों में फ्यूचर बिम है, बिम का स्कोप बहुत ज्यादा है। बिम से इवन रेविट भी लिंक्ड हो जाता है, रेंडरिंग भी बिम से हो जाती है, बहुत कुछ है। बट बिम का अभी इंडिया में फिर भी बहुत कुछ होना बाकी है, उसमें काफी साल हैं अभी भी, बहुत ही गिना चुना लेवल पे बिम पहुंचा है इंडिया तक अभी। सो या अगर आपका अब्रॉड काम जॉब करने का है तो दिस इज वेरी गुड, अगर आप बिम में जाते हैं तो इट इज एक्सीलेंट टू गो इनटू बिम। इंडिया में अभी भी बिम को फुल स्विंग में आने में तो बहुत बहुत ज्यादा टाइम। कैन आई गेट स्टैट प्रो एंड रेविट सर्टिफिकेट्स फ्रॉम प्रोटेनी एज आई एम ऑलरेडी फैमिलियर विद दोस सॉफ्टवेयर्स फ्रॉम यूट्यूब? यार इस चीज का मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा, आई एम अ टीचर हु जस्ट टीचेस एमएसपी हियर। ये सब आप प्रो ट्रेनी से डिस्कस कर सकते हैं, आई हैव नो क्लू अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो एनीवन हैज एक्चुअली डाउट्स रिलेटेड टू एमएसपी और related to course, related to planning, so I am open to that also। अगर आपको अनम्यूट करके कुछ डाउट बोलना है, आप वो भी बोल सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, उससे कुछ इशू नहीं है। डस प्रोट्रेनी ऑफर एनी बिम कोर्स? यस, एक्चुअली शायद बिम का भी एक कोर्स है, वो द प्रोट्रेनी टीम से आप डिस्कस कर सकते हैं, शायद है, आई एम नॉट सॉरी, आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दैट।
Can I get your personal email? Sorry, our personal data we are not allowed to share. आपको जो भी है आप यहाँ पर चैट पर डिस्कस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. इट इज प्रो ट्रेनीज पॉलिसीज जो मैंने ऑफर साइन किया है. आई कैनॉट शेयर. कैन वी गेट सम प्रैक्टिस प्रोजेक्ट आफ्टर सक्सेसफुल? यस, यू विल गेट. जो मैंने स्टार्टिंग में ही कोर्स कंटेंट्स बताया था, यू विल गेट. आपको एक असाइनमेंट भी मिलेगा, आपको प्रैक्टिस सेशंस भी मिलेंगे. लास्ट के 4-5 सेशंस में यही सब चलेगा, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. आप ये वीडियो अगर फिर से देखेंगे तो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट्स में मैंने जो डिस्कस किया था उसमें सब है कि हम क्या क्या क्लासेस में करेंगे एंड क्या क्या हम लोग असाइनमेंट मिलेगा आप लोगों को. वो सब चीजें उसमें डिस्कस की थी मैंने. Okay, guys, so I'll stop the session here. Actually, there is another session scheduled that was scheduled from 9 p.m. onwards. So we are already 5 minutes late. I'll stop the session here. Thank you everyone for attending this demo session so peacefully. जिन भी लोगों को लगा कि बहुत ज्यादा ही session basic में चला गया, again I would like to apologize, but I have no other option because I have to consider about everyone. It's the uh, for every student. So obviously every course will start from basic and then step by step it will reach to advanced level. Thank you very much. Thank you for listening peacefully. Good night. Have a nice day.